Assalamualaikum everyone. This is Sohaib Ahmed from NCGSA. I welcome you all to WordSpace Week once again. I hope you are enjoying this year's WordSpace Week. Today we are here for our first lecture that is by Dr. Hayat Khan. The topic of the lecture is space environment affecting satellites. Dr. Hayat Mohammad Khan is Assistant Professor at Aero and Astro Department at Institute of Space Technology. His research interests are in automation and robotics. He's working for the last 18 years at IST. He worked as a team lead of attitude control and structural integration of iCube-1. Currently, he's involved in SSTR lab and looking after attitude control of iCube-N group. Sir, thank you so much for taking out time from your busy schedule for this lecture. Now, I would like to call Dr. Hayat to please continue with the lecture. Thank you so much. Thank you very much, Sohaib. Sohaib, my screen is visible or not? Yes, sir, I can see the screen. Everyone can see the screen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. As Sohaib has explained certain things related to my today's lecture, as he has already introduced my name and my working experience here at IST. So today I will be telling you people about space environment and its effects on the satellites. So most of you people are from the school and colleges. So I will not go into the details of, it means that the mathematical details of each and every aspect, but I'll just explain you that how these phenomena happen in the space environment and how they are affecting the satellite, its mission, and rest of the things related to the satellites. Okay. During my lecture, I will explain certain thing in Urdu because maybe there are some technical words which you people would not understand. So let's start with the lecture. Our lab, a small satellite research lab, is affiliated with National Center of GIS and Space Application, NCGSA. In this lab, we are working on CubeSat training equipment. These kits are for the purpose of education, and we will prepare certain kits for the training purposes for different universities. Under this lab, we will arrange certain trainings and tutorials in the form of lectures, workshops, and demonstrations for the people to comprehend how this space technology works, how we develop different space system. For example, one of our system which will be the output of this lab. That product would be iCube-N. The name is a Cube satellite with the national significance, and its mass would be 6 kg, inshallah, and it would be a 3U CubeSat. This is the, you can see a proposed diagram or a model of the 3U satellite, which we are planning to make in the coming years.
This is the brief construction or introduction of our satellite, which is composed of antenna module for communication with the ground station. We have solar panels for energy, and EPS stands for power system. COM is for the board for which is responsible for the communication. OBC is the on-board computer, which is responsible for dealing all the communication, control algorithm, and all the commands within the satellite, starting from power up, controlling, image processing, and whatever. So all the processing will be performed in OBC. Then we have a module ADCS. This is the module attitude, determination, and control system. And at the top, you can see a camera like thing. It's the payload, which primary goal is to take the images. So we encourage the people from different universities, colleges, and school to participate in our iCubeN project in the form of defining certain payload. Even certain universities, they can make different modules for this satellite. The payload is the most important thing. For the time being, it's a 3U satellite. So one of the unit is dedicated for a payload. Up till now, most of the things were very technical. Now I am coming towards my presentation, the contents. First of all, I will introduce what are the orbits around the Earth for different satellites. Then I will talk about the space environment. And later on, I will discuss the hazards because of the space environment on the satellite. I will discuss those factors. सबसे पहले हम ऑर्बिट्स को डिस्कस करते हैं. किसी भी चीज, अर्थ जिस तरह है फॉर एग्जांपल, इसके गिर्द घूमने वाली जो भी चीज होगी, दैट वुड बी कॉल्ड इट्स सैटेलाइट. जो भी चीज एक फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट को फॉलो करेगी, उसको सैटेलाइट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट भी मौजूद है, दैट इज द मून. और मून एक फिक्स्ड ऑर्बिट में एक पाथ में ट्रेवल करता है और जमीन के गिर्द वो घूमता है. मींस इट्स सेंटर इज अर्थ और वो इसके गिर्द एक फिक्स्ड टाइम के अंदर एक चक्कर कंप्लीट करता है. इसी तरह हम देखते हैं कि उससे जो है वो इसकी चांद की जो घटना है और बढ़ना है वो हमें नजर आता है. एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 30 डेज चांद जो है वो अपना चक्कर कंप्लीट करता है. चक्कर किस तरह कंप्लीट करता है? मींस वो डिफरेंट फेजेस जो उस पे अपीयर होते हैं. वैसे तो एक चक्कर उसका एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, लेस देन 1 डे वो कंप्लीट कर लेता है. लेकिन जो उसके ऊपर डिफरेंट फेजेस आते हैं, वो तमाम फेजेस के साथ जब वो अर्थ के गिर्द एक कंप्लीशन करता है, तो दैट कंप्लीट्स 1 लूनर मंथ. तो ये था नेचुरल सैटेलाइट. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने डेवलप किए हैं और वो अर्थ के गिर्द जो हैं वो रोटेट करते हैं. उनके डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, मीन जो पाथ हैं वो अर्थ के गिर्द हैं. तो इन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं कि वो इनके अंदर घूमते हैं. अब वो ऑर्बिट जो हैं वो उनके डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं. साथ ही साथ उन ऑर्बिट्स के अंदर उन सैटेलाइट की डिफरेंट स्पीड्स है. तो नाउ दिस इज द फिगर in which you can see सेंटर में बिल्कुल आपको अर्थ नजर आ रहा है और अर्थ से अगर आप राइट साइड के ऊपर एक्सिस के ऊपर चलते हैं, यू कैन सी 1000 किलोमीटर, देन 2000 किलोमीटर एंड 3000 किलोमीटर. इस तरीके से जो है आप डिफरेंट जो है आपको एल्टीट्यूड्स नजर आ रहे हैं. दिस इज द एल्टीट्यूड के. इससे जितना हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो हम डिफरेंट एल्टीट्यूड्स गेन कर रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर से. और अब इसके ऊपर प्लेसमेंट है डिफरेंट आपको नजर आएंगे, डिफरेंट आपको ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इनसाइड पे ये बहुत क्लोज, अर्थ के बिल्कुल क्लोज कुछ सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इसमें आपको ये ISS नजर आ रहा है। ISS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको बिल्कुल अर्थ के करीब नजर आ रहा है। इट्स अबाउट 500 किलोमीटर एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ। तो ISS जो है उसकी जो प्लेसमेंट है वो 500 किलोमीटर, ठीक है। अब जो ये आप नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो यू कैन सी द स्पीड्स। तो सबसे पहले आपको 25,000 किलोमीटर पर आवर नजर आ रहा है, देन 1500, इससे नीचे चले तो 2000 किलोमीटर पर आवर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप नीचे चलते जाते हैं, सो एट द एंड यू हैव 11,000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि इन बेल्ट्स के ऊपर ये जो आपको डिफरेंट ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, जितनी इनकी जमीन से हाइट है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपको हाइट नजर आ रही है कि ये वाला जो सर्कल है, लेट्स सपोज दिस वन, तो अब इसके अंदर एक ऑर्बिट में एक खास स्पीड है। अब हर ऑर्बिट के साथ उसकी स्पीड जो है वो बताई गई। अब इसे जरा ऊपर देखें तो आपको वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर अगर देखें 5 आवर्स, देन 10 आवर्स, 15 आवर्स एंड 20, ये डिफाइन करता है कि उसका ऑर्बिट टाइम कितना है, ऑर्बिट टाइम कितना चल रहा है। एग्जांपल इफ वी आर हियर, यहाँ पे 5 आवर्स में अगर आप देखें, 5 आवर्स का मतलब है कि ये जमीन के गिर्द जो है 5 घंटे में अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की तरफ चलते जाएं, सो यू कैन सी दिस वन, दिस इज 24 आवर्स। 20 घंटे के बाद आपको यहाँ पे 24 आवर नजर आ रहा है। एंड विद दिस स्पेसिफिक यू कैन सी अ टर्म जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम जियो कहते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, द एब्रिविएशन इज जियो। जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट इज एट 35,000 किलोमीटर, और उसका जो स्पीड बनती है वो अप्रोक्सीमेटली 11,000 किलोमीटर पर आवर बनती है। और उसका जो रोटेशन टाइम बनता है दैट इज 24 आवर्स। इसका मतलब है कि जिस तरह जमीन स्पिन करती जा रही है, साथ साथ वो भी चलता जा रहा है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, जमीन अपने गिर्द एक रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, इसी तरह जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की सैटेलाइट्स भी जो हैं वो 24 आवर्स में अपना चक्कर कंप्लीट करती हैं। तो क्योंकि दोनों की रोटेशन सिंक्रोनाइज्ड है, मींस वो भी 24 आवर्स के ऊपर जो है वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करती हैं, और जमीन भी अपने गिर्द एक चक्कर जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो दे आर कॉल्ड सिंक्रोनस। सो अब अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान के एन ऊपर एक सैटेलाइट खड़ी है, सो दैट विल रिमेन थ्रू आउट इट्स इन इट्स साइटेशन, वो हमेशा उसको नजर आ रहा है कि उसकी लाइन ऑफ साइट जो है वो हमेशा मेंटेन रही। अब ये जो है बस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहलाता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर ज्यादातर हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, जो इस वक्त फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 2 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। एक का नाम है पाकसेट 1R और दूसरी जो है वो MM1 कहते हैं उसे। तो मल्टी मिशन सैटेलाइट है हमारी पाकिस्तान की, और एक हमारे पास जो है पाकसेट 1R। आपके घरों में जो चैनल्स आते हैं, डिफरेंट चैनल जो आते हैं आपके केबल के थ्रू, वो केबल पे जो चैनल्स आते हैं वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जो हमारी सैटेलाइट है पाकसेट 1R, उसकी वजह से वो जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो रही है। इसी तरह ये कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट अर्थ ग्लोब के ऊपर डिफरेंट हिस्सों में भी पाकिस्तान की जो ये सैटेलाइट है ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल इसका जो स्पैन शुरू होता है ये मलेशिया से शुरू होता है एंड अप टिल फ्रांस जो है ये कवर करता है। तो इसका मतलब है कि जो ईस्टर्न साइड से ये एशिया को कवर करना शुरू करता है, अप टिल यूरोप जो है ये कंप्लीट आपको कवरेज देता है। तो इसका मतलब है जो चैनल्स पाकिस्तान के इस सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वो मलेशिया में भी देखे जा सकते हैं, और इसी तरीके से टिल फ्रांस जो है वो देखे जा सकते हैं। सो ये फायदा है आपको जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का, ठीक है। अब अगर नीचे आए तो वी हैव डिफरेंट ऑर्बिट्स, और उसमें कुछ आपको जीपीएस एक नजर आ रहा है। दिस इज अ फेमस टर्म जो आके आपके मोबाइल सर्विसेज की वजह से आपको नजर आ रहा है। जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की सैटेलाइट्स हैं, ये मियो ऑर्बिट में होती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आपको नजर आती हैं। इसके अलावा ये क्लोनस, पाइदू और गैलीलियो, ये भी जीपीएस टाइप की जो है वो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं जो कि मियो में डिप्लॉयड हैं।
अब नीचे अगर आप आते हैं इसी y एक्सिस के साथ, अगर आप डाउन टुवर्ड्स ये अर्थ आ रहे हैं, तो यू कैन सी हियर एज मीडियम एंड सेकंड वन इज हबल। तो ये जो हबल आपको नजर आ रहा है, हबल एक फेमस टेलीस्कोप है जो कि आपके पास लो अर्थ ऑर्बिट के पास जो है वो डिप्लॉयड है। सो दिस इज थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ऑर्बिट होते क्या हैं, उनकी हाइट क्या होती है, हाइट या इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, उससे उनका जो है वो जो रोटेशन टाइम है वो कैसे वेरी करता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं बाद में रेफर करूंगा इज दिस थिंग, द मोर नियर टू यू टू द अर्थ उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे आप देख लें तो आईएसएस से जस्ट नीचे आपको ये नजर आ रहा है, तो इधर है 25,000 किलोमीटर पर आवर, के बाद 2000 किलोमीटर पर आवर, और इवन आपको ये जो लास्ट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के पास नजर आ रहा है, दैट इज 11,000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि एक घंटे में ये 11,000 किलोमीटर जो है वो कवर करता है। ठीक है, अब अगर इसकी तरफ आते हैं, आईएसएस की तरफ आए, सो आईएसएस इज अबाउट 500 किलोमीटर इसकी हाइट है। ये लियो और ऑर्बिट में आता है। लियो का मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोमीटर के ऊपर आईएसएस डिप्लॉयड है, और ये अपना चक्कर तकरीबन 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे का मतलब है एग्जैक्ट 90 मिनट्स में कंप्लीट करता है। सो 90 मिनट्स में ये अर्थ के गिर्द अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ जो है वो घूमता रहता है। और इवन ये पाकिस्तान में भी कभी कभार देखा जा सकता है, जिस वक्त सन सुबह सूरज तलू हो रहा हो या शाम को गरूब हो रहा हो, और अगर ये इसके किसी पोर्शन पे आ जाता है तो आईएसएस देखा जा सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी और किस साइड पे होगी, ये भी देखा जा सकता है। नोरैड के डाटा से ये क्लियरली आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब हम चलते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑर्बिट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट। द फर्स्ट वन इज बाय इंक्लिनेशन, कि हम इंक्लिनेशन के हिसाब से कैसे डिफाइन करते हैं कि अर्थ ऑर्बिट कैसे हैं। द फर्स्ट वन इज इक्वेटोरियल ऑर्बिट। इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो है वो बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल जो है वो मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं अर्थ के इर्द गिर्द। इसमें आप जरा क्लियरली इसको देख सकते हैं कि इस प्लेन के अंदर जो इक्वेटर के में से पास कर रहा है, इसके ऊपर ये जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है, अपना ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है। सो दिस इज इक्वेटोरियल ऑर्बिट। उसके बाद बिल्कुल 90 डिग्री पे अगर आप देखें कि अर्थ गुजर रहा हो, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से पास कर रहा हो, so that would be polar orbit। इसको हम पोलर ऑर्बिट कहेंगे, और इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी इंक्लाइंड ऑर्बिट हो सकता है, ठीक है, किसी भी डिग्री के ऊपर हो सकता है, और वो अपर हेमिस्फीयर और लोअर हेमिस्फीयर को उसी तरीके से कट कर रहा होगा। ठीक है, so that would be called as inclined orbit। और inclined orbit के साथ उसके एंगल्स बताए जाते हैं कि वो कितने एंगल के ऊपर जो है वो डिप्लॉयड है। उसके बाद बाय शेप वी डिफाइन सर्कुलर ऑर्बिट, तो भी हमने डिस्कस कर लिया कि सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। इसके अलावा इलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकते हैं। अब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है ये बिल्कुल जिस तरह आपने इलिप्सॉइड्स देखे होते हैं कि एक उसका मेजर एक्सिस होता है और एक इसका माइनर एक्सिस होता है। तो इसका जो मेजर एक्सिस की जो जिसे कहते हैं लोएस्ट पॉइंट टुवर्ड्स अर्थ हो, या जिसे कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो, उसको हम डिफाइन करते हैं इसकी पेरिजी। और जो इसका फारदेस्ट पॉइंट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एपोजी। सो एपोजी इज द फारदेस्ट पॉइंट एंड पेरिजी इज द नियरेस्ट पॉइंट। उसके बाद बाय अल्टीट्यूड हम डिफाइन करते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट लियो कहलाता है। जो मीडियम लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो तकरीबन 160 से शुरू होता है और 2000 किलोमीटर पे जाता है। उसके बाद जो आपके पास मियो ऑर्बिट्स होते हैं, ये शुरू होते हैं 5000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक जाते हैं। और उसके बाद आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसको हम जियो ऑर्बिट्स कहते हैं, जो कि सिंक्रोनाइज होते हैं अर्थ की मोशन के साथ। वो होते हैं 35,800 किलोमीटर से शुरू होते हैं, जिसके अंदर ये तमाम सैटेलाइट्स आपकी प्लेस्ड होती हैं। अब ये हर मुल्क के ऊपर एक यूनिक स्लॉट होती है जिसके अंदर ये सैटेलाइट्स मौजूद होती हैं, और इनकी कम्युनिकेशन 24 घंटे जो है वो इस स्लॉट के अंदर अवेलेबल होती है। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि इनको कोई ऑक्यूपाई ना करे,
और उस मुल्क के अलावा जब कोई और से ऑक्यूपाई करता है तो यूं समझ लें कि आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इवन अगर आपसे वो चीज छीन चुकी है तो फिर आप उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, अनटिल अनलेस कोई सैटेलाइट जो है वो डी ऑर्बिट होती है, डी कमीशन होती है, अदरवाइज आपके पास कोई चांस नहीं होता। सो ये भी, इसके लिए भी अथॉरिटी है जिसको जो ये चीजें कंट्रोल करती है कि सैटेलाइट कहाँ प्लेस होगी, कैसे होगी, और कोई किसी की सैटेलाइट की जगह को कब्जा करे या ना करे। सो दिस इज ऑल इंटरनेशनल थिंग जिसको ये लुक आफ्टर किया जाता है। मुख्तलिफ मॉनिटरिंग जो है वो हमारे पास एजेंसीज हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ऑर्बिट्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स के बारे में आपको बताया गया। अब हम आते हैं स्पेस इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेस इन्वायरमेंट है क्या? तो सबसे पहले एक चीज जो स्पेस के बारे में है कि ये शुरू कहां से होता है, व्हाट्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन से कि स्पेस शुरू होता है, और स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी। तो एक्सेस 15 पायलट्स and the first United States astronauts to fly suborbital flights in the Mercury program. So ये about 95 किलोमीटर ये जो है वो उन्होंने जो है वो अचीव किया था कि 95 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस जो है वो उन्होंने फ्लाई किया था, और इसको जो है वो उन्होंने नियर स्पेस कहा था। ये इस अप्रोक्सीमेटली जहाँ पे नासा डिफाइन करती है और जहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट्स डिफाइन करती है कि जब कोई पायलट जो है वो इतनी हाइट पे फ्लाइट करे विच इज 92.6 किलोमीटर पे, तो नासा उसको एक विंग अवार्ड करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉट विंग। For our purpose, space begins where satellites can maintain orbit about 130 किलोमीटर। अब हम उस स्पेस की बात करेंगे जिसमें सैटेलाइट रह सकती हैं और वो बेयर मिनिमम है। सो दैट इज द सेफेस्ट जो शुरू होता है, दैट इज 130 किलोमीटर के ऊपर जो है वो शुरू होता है। अब इससे नीचे जो बात करेंगे, इससे नीचे जो है वो एटमॉस्फेयर होता है। अगर वो एटमॉस्फेयर में इतनी हाई स्पीड के साथ रोटेट करेंगे अराउंड द अर्थ तो वो वैसे ही जल जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पीड अचीव कर जाएंगे या उसको इतनी स्पीड देनी पड़ेगी कि उसको रिटेन रखना मुश्किल काम है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के साथ उसके मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो टकराएंगी, ड्रैग प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से वो खुद जल जाएंगी। तो इसीलिए जो है 130 किलोमीटर जो है वो सेफेस्ट डिफाइन किया जाता है, और वहीं से जो है वो हम कहते हैं कि स्पेस शुरू होता है। अब स्पेस के अंदर जो है वो क्या क्या चीज पाई जाती है। स्पेस के अंदर ये डायग्राम आपको बता रही है कि इसके अंदर एट फर्स्ट राइट साइड पे अगर आप देखें, ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाती है। जब जो हम सरफेस ऑफ अर्थ को छोड़ते चले जाते हैं उतनी ही ग्रेविटी का इम्पैक्ट कम होना शुरू होता है। सो जो हम सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाते जाएंगे ग्रेविटी का इफेक्ट कम होगा, और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि हम जो है वो नेचुरल जो है वो वेटलेसनेस फील करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कि वो सबसे पहले वो कम होगी। वैक्यूम इज द सेकंड थिंग कि वैक्यूम जो है वो आपके पास जनरेट होगा, क्योंकि जो हम जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है वो स्पेस शुरू हो जाएगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मीट जो है हमारे पास, एनीथिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल इज स्पेस, खाली जगह। सो वैक्यूम का मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं है। सो वो आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूम जनरेट होना शुरू होता है, और वैक्यूम जो है वो उसको यूं डिफाइन करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ नथिंग, ये कोई मीडियम वहां पे मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वैक्यूम। ग्रेविटी, देन एटमॉस्फेयर। अब इसका एटमॉस्फेयर जो है उसमें रेडिएशंस होती हैं, काफी सारी किस्म की रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि आपने नाम सुना होगा कि ओजोन लेयर जो है वो हमें सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, इसके अलावा रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वो एटमॉस्फेयर जैसे ही हम ओजोन को लीव करेंगे हम एक्सपोज हो जाएंगे टुवर्ड्स दैट हार्श एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर हमारे पास रेडिएशंस भी होंगी, रेडियो एक्टिव भी होंगी डेफिनेटली उसके अंदर, इसके अलावा चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, प्लाज्मा भी होगा उसमें, उसके अंदर जो है वो थर्मल भी होंगी। वो थर्मल क्या होगी अब लेटर ऑन हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो सोलर विंड्स होती हैं। तो ये हमें आहिस्ता आहिस्ता फील होना शुरू होती हैं व्हेनेवर वी आर लिविंग द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो ही हम वैक्यूम में पहुंचते हैं, सो वी हैव जो ही हम स्पेस में पहुंचते हैं, सो वी हैव वैक्यूम,
ग्रेविटी कम हो जाती है, एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, एंड देन वी आर एक्सपोज टू मेट्रोइड्स एंड स्पेस जंक। और फिर हम जो है वो जो मेट्रोइड्स हैं, जो स्पेस के अंदर कुछ चीजें मौलिक हैं, वो भी वहां पे प्रेजेंट होती हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि द मोर वी आर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उनकी स्पिनिंग वेलोसिटी बहुत हाई होती है। तो स्पिनिंग वेलोसिटी का मतलब है कि लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूं कि हम लियो ऑर्बिट में हैं, तो एक चीज अगर मूव कर रही है, वहां पे एक स्मॉल पार्टिकल भी मूव कर रहा है, तो वो जस्ट लाइक बुलेट है। जिस तरह एक गन से गोली निकलती है और आप उसके सामने खड़े होंगे, तो वो आपको क्रॉस कर जाएगी और आपको डैमेज कर देगी। तो डेफिनेटली दैट थिंग इज देयर। और स्पेस जंक भी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। लेटर हम इसको भी डिफाइन करेंगे कि ये डेब्रीज क्या चीजें हैं और कैसे बनती हैं। रेडिएशन एनवायरनमेंट डेफिनेटली देयर है। और उसके बाद चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो ऑक्सीजन है, जो ही वो आप लीव करना शुरू करते हैं ओजोन को, तो उसके बाद जो आपके पास ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं कि दे आर दी चार्ज पार्टिकल्स। और वो ऑक्सीजन जो है वो कंटेमिनेट करती है जो आपकी सरफेसेस हैं, और उनको वो ऑक्सीडाइज कर देती है। ऑक्सीडेशन तो आपने पढ़ी होगी कि जैसे ही उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन उसमें रस्टिंग प्रोड्यूस करती है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये आपकी चीजों की जो स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देते हैं। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीजों के ऊपर जरा गौर करेंगे कि ये हैं क्या चीजें। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस दोस इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज द वैक्यूम। तो वैक्यूम में पहला काम क्या होता है? आउट गैसिंग। अब क्योंकि जब सरफेस ऑफ अर्थ पे हम कोई चीज डालते हैं, कोई चीज को इकट्ठा करते हैं, सो इसके अंदर गैसेस भी या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, या जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। और जो ही वो वैक्यूम में आते हैं, तो वैक्यूम में आने के साथ वो बबल अप हो जाते हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो द मोमेंट दैट दे लीव, वो चीज क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को कमजोर कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऐसी एडहेसिव मटेरियल थी जिसको आपने फॉर्म किया एक फोम बनाने के लिए, तो जैसी वो फोम सा बना है, उस फोम के अंदर आपको छोटे छोटे जो है वो एयर पार्टिकल्स ट्रैप नजर आएंगे। तो द मोमेंट आप जैसी स्पेस में जाएंगे, करते करते वो गैसेस उसमें से जो ट्रैप हुई हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे, और जब वो निकलेंगी तो साथ साथ उस चीज को डैमेज करेंगे, उसमें क्रैक्स आएंगे। ये चीजें उनमें ज्यादातर होती हैं जिनमें हम कोई लिक्विड का प्रोसेस जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर करते हैं, कि उसको पहले लिक्विफाई करते हैं, उस चीज को वो मेल्ट फॉर्म में लेके आते हैं, और मेल्ट फॉर्म के बाद जो है वो हम उसको कोई और प्रोसेस करके कोई चीज बनाते हैं। सो दैट बिकम्स, उसमें सिर्फ आउट गैसिंग होती है, तो वो चीज जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो लूज कर देती है। द सेकेंड इज कोल्ड वेल्डिंग। Cold welding is defined as the fusing together of metal components. कोल्ड वेल्डिंग आपके पास वैक्यूम में होती है, कि जब भी हम कोई चीज जमीन के ऊपर कोई रखते हैं एक दूसरे के साथ, दो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम इनको एक उसका ज्वाइन करते हैं या उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो उसके बीच में याद रखिएगा एक एयर फिल्म होती है। वो एयर फिल्म छोटे से इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो उसके अंदर बने होते हैं, जो उसकी सरफेस की रफनेस के अंदर जो वो आ जाते हैं, वो क्या करते हैं उसके अंदर जब ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, तो ऐसे होता है जैसे कि आपने उसको वेल्ड कर, ठीक है। वो इन दोनों की रफनेस की वजह से वो दोनों सॉलिड सरफेसेस जो हैं वो आपस में बॉन्ड कर जाती हैं, और ये टेम्परेरी होता है बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड वेल्डिंग। और ये कोल्ड वेल्डिंग ऐसे भी होती है कि लेट्स सपोज इफ यू आर एक्सपोज टू द सन, तो एक साइड पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। लेट्स सपोज आई एज्यूम कि एक साइड पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर दूसरे साइड पे देखें जिसके ऊपर साया है और कंटिन्यूसली उसके ऊपर साया लग रहा है, तो वो जो होगी आपके पास तकरीबन, लेट्स सपोज मैं इसे डिफाइन करता हूँ कि वो -100 के ऊपर है। सो अगर एक ही चीज है, उसका ग्रेडियंट देखें अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको नजर आ रहा है कि एक फेस व्हिच इज एक्सपोज टू सन हैविंग टेंपरेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द सेकंड वन व्हिच इज अंडर इक्लिप्स, या उसके ऊपर साया है, शैडो है, so that is having -100 डिग्री सेंटीग्रेड, the gradient is 300 डिग्री। सो ये भी उसके अंदर जो है वेल्डिंग जो है वो कर देता है। हीट ट्रांसफर इज कैन ओनली बी डन विद रेडिएशन। सो यहाँ पे ना तो कन्वेक्शन हो सकती है और ना ही कंडक्शन हो सकती है, जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अब क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है, सो ओनली रेडिएशन के साथ ही जो है वो हीट ट्रांसफर होती है आपके पास। सो दिस इज द प्रॉब्लम्स इन वैक्यूम।
जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स सैटेलाइट के अंदर आते हैं, ये इसलिए हमने वैक्यूम के ये चीजें डिस्कस की। The second one is the gravity. अब ग्रेविटी इज द फ्री फॉल जिसे हम कहते हैं जमीन के ऊपर, या जीरो ग्रेविटी, या हम इसको आगे जाके मजीद एक और टर्म कह सकते हैं माइक्रो ग्रेविटी, कि आपके पास ग्रेविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, और आप जो जो इन्फ्लुएंस अर्थ की इन्फ्लुएंस से निकलते जाएंगे तो आपके ऊपर मून की इन्फ्लुएंस भी शुरू हो जाती है, और आपके पास सन की इन्फ्लुएंस भी शुरू हो जाता है। तो दिस इज डिफाइंड एज, ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेट है, इसको हम जीरो ग्रेविटी स्टेट कहते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे, ये एक एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट जोसेफ कैर्विन, forms a perfect sphere with a large drop of water which floats freely in the Skylab cabin. Left alone, the water ball may float to a solid surface and coat the surface, making a mess that doesn't run to the floor. अब वहां पे पानी जो है, इवन कोई भी चीज है, तो वो अपना सरफेस रिटेन करती है। आप देखें यहाँ पे आपको स्पेस में एक एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है, और इसी तरह इस पानी को पीना भी जरा मुश्किल काम होता है कि आप किसी ग्लास से वहां पानी पी नहीं सकते। सो उसके लिए डिफरेंट किस्म की गैजेटरीज डिजाइन की जाती हैं ताकि इनके लिए खाना, इनके लिए पीना और इवन एक्सरसाइज करना भी आसान हो, क्योंकि वहां पे आपको देखें ब्लड सर्कुलेशन भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। इसी तरह आपके जो बॉडी मसल्स हैं वो भी वीकनिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि हमारी जो बॉडी डिजाइन है वो ग्रेविटी के हिसाब से डिजाइन है, और वो ग्रेविटी भी 9.8 के हिसाब से डिफाइन है। तो अगर हमारे पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी लगेगी तो भी हम मूव नहीं कर सकेंगे, और हमारे जो मसल्स हैं वो वीक कर जाएंगे, हम इतनी पावर जनरेट नहीं कर सकेंगे कि हम अपना फुट जो है वो फुट स्टेप ले सकें। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी डिजाइंड है वो 9.8 के हिसाब से डिजाइंड है। तो व्हेनेवर वी गो टू जीरो ग्रेविटी, इसके जो है वो बैड इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन के अंदर होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, और ऐसी एक्सरसाइज करते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो अपनी बॉडी को मोशन में रख सकें, उसके फ्लूइड्स को, उसके मसल्स को, और तो, ये ना हो कि वो अगर जमीन के ऊपर आए तो उनको प्रॉब्लम्स हो जाए। देन वी हैव एटमॉस्फेयर, और अब इसको जरा ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जरा देखिएगा। अर्थ एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स अ स्पेसक्राफ्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट पे जब आप आना शुरू करते हैं बिलो 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर बिहेव करना काफी शुरू कर देता है। और अगर ये आप इस कर्व के ऊपर देखेंगे तो इस कर्व के ऊपर अगर 10⁻⁻2 के ऊपर चेक करेंगे, दिस इज द प्रेशर। तो दिस इज एट 200 किलोमीटर तकरीबन, रफली आपको यहाँ शो हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो जो आपके पास है, जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है, और डेंसिटी भी मीडियम की बढ़ती जा रही है। तो जो आप अर्थ के करीब आते जाएंगे आपके पास ड्रैग आना शुरू होगा, और जो ड्रैग है वो क्या करेगा कि अगर आप उसके साथ टकराते में किसी चीज के साथ, तो डेफिनेटली वो जो है वो उसके अर्थ के करीब आपको लेके आएगा, मींस आपका जो ऑर्बिट है वो लूज करना आप शुरू कर देंगे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो ड्रैग है वो आपके पास इन्फ्लुएंस होता है व्हेनेवर यू आर लेस देन 600 किलोमीटर। तो इसमें आपका जो ऑर्बिटल लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आप ड्रैग से के साथ होते हैं तो आपको रिएक्शनरी जो है वो फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होते होते फिर क्या होगा कि जो है वो बॉडी जो है वो फॉल कर जाएगी, एटमॉस्फेयर में एंटर होगी, और इस तरह वो जो है वो बहुत ज्यादा जो है गर्म होगी। जिस तरीके से ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपको स्पेस शटल है वो अर्थ के अंदर एंट्री कर रही है, और उस एंट्री के वक्त देखिएगा कि वेरी हाई टेम्परेचर रेंजेस जो है वो अचीव हो रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं इस फिगर के अंदर। और एक और चीज जो इसके अंदर है, एटॉमिक ऑक्सीजन भी जो है वो डिग्रेड करती है स्पेसक्राफ्ट सरफेसेस को, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो ऑक्सीडाइज कर देती है आप जो सरफेसेस हैं उसकी, और इसकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो जो स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किए गए होते हैं वो उतनी स्ट्रेंथ दे नहीं होते। देन वी आर टॉकिंग अबाउट मेट्रॉइड्स एंड स्पेस जंक। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, इसको हम नोरैड कहते हैं, ये कोलोराडो स्प्रिंग्स के अंदर है अमेरिका में।
It uses radar and optical telescopes to track more than 8,000 objects, baseball size and larger in Earth orbit. ये अगर देख रहे हैं आप फिगर में, तो ये नोरैड ने एक पिक्चर दी है कि इसमें तकरीबन 8,000 ऑब्जेक्ट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो ये पिक्चर है अभी इससे भी ज्यादा है, डेफिनेटली एक पुराना डाटा है। तो नोरैड का डाटा जो है वो हर वक्त अवेलेबल होता है, आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे वो इसको स्कैन कर रही होती है अपने मुख्तलिफ रडार्स के और ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स के साथ। और जो जिस साइज को ये ट्रैक करती है वो बेसबॉल जितनी होती है, ठीक है, या उससे बड़ी कोई चीज होगी। अब बात आती है कि इससे अगर छोटी होगी तो वो क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू वर्ड्स एंड लार्सन, देयर आर एट लीस्ट 40,000 गोल्फ बॉल साइज्ड पीसेस। अब 40,000 जो है वो गोल्फ बॉल जितनी चीजें हैं जो कि स्पेस के अंदर मौजूद हैं, और ये इतनी छोटी हैं कि इनको नोरैड ट्रैक नहीं कर सकता, और ये ऑर्बिट्स में मौजूद हैं, मुख्तलिफ डेब्री है, इसके अलावा स्पेस जंक है आपके पास। To make matters worse, there also may be billions of much smaller pieces like paint flakes, slivers of metal, etc. छोटे नट बोल्ट, कोई भी ऐसी चीज जो है वो बिलियंस की तादाद में हमारे जमीन के गिर्द जो है वो बिखरे पड़े हैं, जो कि अर्थ के गिर्द जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं। अब द मोमेंट आप वहां पे कोई सैटेलाइट या कोई भी चीज डिप्लॉय करें, तो ये पॉसिबिलिटी है, वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसको इनमें से कोई चीज हिट कर जाए। अब लेट्स सपोज कोई चीज अगर हिट करती है, जो चीज नोरैड नहीं वो कर रही है, आपको ट्रैक करके नहीं बता रही, तो डेफिनेटली वो एक डिजास्टर होगा, और लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि उससे क्या डिजास्टर हो सकता है, आपका मिशन कैसे फेल हो सकता है। सो मेट्रॉइड्स एंड स्पेस जंक, ये एक छोटी सी फिगर आपको बताइए। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सैटर्न की गिर्द जो है वो आपको रिंग्स नजर आते हैं। जो उसके रिंग्स हैं वो इसके इक्वेटोरियल ऑर्बिट के ऊपर ही नजर आ रहे हैं, और तमाम के तमाम जो उसका स्पेस जंक है उसके अंदर जो है वो डिप्लॉयड है, क्योंकि वो नेचुरल है। डिसोसिएशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स या मून्स या कुछ भी ऐसी चीज, मेट्रॉइड्स डिफाइन कर लें, सॉरी एस्ट्रॉइड्स डिफाइन कर लें, जो कि उसके गिर्द घूम रहे थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक फिक्स्ड पाथ जो है वो कर लिया है। अब इस तरह आपको जुपिटर में, सैटर्न में, यूरेनस में और नेपच्यून में, जो आपके आउटर 4 प्लैनेट्स हैं, उन चारों में आपको ये रिंग सिस्टम नजर आएंगे। और इसका मतलब है कि जो उसके इर्द गिर्द जो एस्ट्रॉइड्स थे, उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया हुआ है, एंड दे आर नाउ फॉर्मिंग अ रिंग, और रिंग प्रॉपर रिंग के अंदर जो है वो मोशन कर रहे हैं। तो अब जमीन के गिर्द जो है वो एक रिंग तो है प्रॉपर, ये जो आपको एक नजर आ भी रहा है, ये रेड सा कलर का नजर आ रहा है, ये आपको जियोसिंक्रोनस का नजर आ रहा है। ये काफी बड़ा आपको ये रेड कलर की जो लाइंस नजर आ रही हैं, काफी बड़ा दायरा नजर आ रहा है। ये जो दायरा है ये आपके पास जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का है, कि ये वो सैटेलाइट्स हैं जो जमीन के साथ सिंक्रोनसली मूव कर रही हैं, और डेफिनेटली ऑल ऑफ देम आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। लेकिन ये जो छोटी डेब्री या बाकी सारी चीजें हैं जो जिसमें आपकी जीपीएस की सैटेलाइट्स हैं, गैलीलियो हो गई, ग्लोनस हो गया और पैदू हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो छोटी सैटेलाइट्स, जिस तरीके से हमने भी एक सैटेलाइट डिप्लॉय की थी iCube-1, वो स्टिल ऑर्बिट के अंदर है, वो अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रही है, और वो भी तकरीबन 90 मिनट्स में अपना जो है वो सर्कल कंप्लीट करती है, ऑर्बिट कंप्लीट करती है अराउंड अर्थ। नाउ विल टॉक अबाउट रेडिएशन। सो अब आपको ये सोलर विंड नजर आ रहा है कि बिल्कुल कोने में आप देखेंगे, यू कैन सी सन, और उसमें से ये फ्लेयर्स जो हैं वो निकल रहे हैं। अब ये जो फ्लेयर होते हैं वो मूव करते हैं तमाम डायमेंशन में, सन के गिर्द जो है वो निकलते हैं। अब वो जब निकलते हैं तो वो डेफिनेटली जमीन भी अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रहा है, तो जब घूमता है तो ये इस तरीके से एक पैटर्न बनता है। ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है कि ये जो सोलर फ्लेयर हैं ये जमीन के साथ जो है वो आ जाते हैं, और जब ये आते हैं तो ये हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हमारे मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये उनके साथ अलाइन हो जाते हैं। और इन अलाइनमेंट से हमें फायदा ये होता है कि जो आपको अरोरल जोन नजर आता है, जो अरोरा जिसे कहते हैं कि नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे आपको अरोरा नजर आता है, विच इज चेंजिंग कलर्स या कलरफुल लाइट्स कहते हैं,
वो तमाम के तमाम आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अंटार्कटिका या आपके ऊपर जो ऊपर नॉर्वे की तरफ अगर आप देखते हैं, नॉर्वे एंड डेनमार्क, उस साइड पे आपको ये अरोरा लाइट्स नजर आती हैं जो कि चेंजिंग कलर्स होते हैं, आपको लाइट के नजर आते हैं। तो ये ज्यादातर पोल्स पे होते हैं। फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो जमीन से निकल रही हैं, ये जमीन को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम दीज सोलर फ्लेयर्स। और प्रोटेक्ट करने के साथ फायदा है क्योंकि इसमें आपके पास आयंस भी होती हैं, प्लाज्मा भी होता है, तो ये प्रोटेक्ट करती हैं जमीन को ताकि हम जो है वो प्रोटेक्ट रहें। और कुछ प्रोटेक्शन जो है अल्लाह ताला ने हमें ओजोन लेयर की तरफ से की हुई कि जो अल्ट्रा वायलेंट लाइट है वो हम तक नहीं पहुंचती, और अल्लाह ताला जो है वो ओजोन को मतलब सलामत रखे कि इसकी वजह से इंसानों में कैंसर और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि डीएनए को इफेक्ट कर सकती हैं, उनको जो है वो महफूज रखता है इंसान। अब अगर इसी में आप देखेंगे अर्थ है, आपको एक और चीज नजर आ रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, रेडिएशन बेल्ट्स। ये रेडिएशन बेल्ट्स आपको नजर आते हैं एंड वन ऑफ देम इज रेडिएशन एनॉमली, आगे उसका एक नाम भी आपको नजर आएगा। और अगर जो अब अर्थ से आप आगे चलते जाते हैं तो इस तरीके से इसकी ये मोशन होती जाती है। तो इसके ये अगर आप देखें, न्यूट्रल शीट भी नजर आ रही है आपको, और मैग्नेटोपॉज भी नजर आ रहा है, और इस तरह की कुछ चीजें जो टेक्निकल हैं वो आप देख सकते हैं कि ये जो सोलर फ्लेयर है वो निकलने से क्या हम पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जमीन के ऊपर। सो ऑन एक्सपोज सरफेस, जो सरफेस एक्सपोज होती है टुवर्ड रेडिएशन, वो ओवर हीट होना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दी कि जिस साइड पे सोलर लाइट पड़ रही होगी तो वहां पे एक्सट्रीम हीटिंग हो जाएगी, और दैट कैन गो टू, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां तक वो डेफिनेटली जा सकता है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें इस्तेमाल की गई है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो इतनी हीट को रेजिस्ट कर सके। डिग्रेडेशन और डैमेज टू सरफेस, और साथ साथ क्या होते हैं कि जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस ना होने की वजह से जो कुछ चीजें हैं वो हमारी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो जो हीट होना शुरू होते हैं, अगर वो स्पेस उसके नहीं लगे हुए, ग्रेड के नहीं लगे हुए, तो डेफिनेटली वो उसमें सस्टेन नहीं कर सकेंगे और वो डैमेज हो जाएंगे। सोलर प्रेशर ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। आपको ये पता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स जो हैं वो जब इतने हाई स्पीड होते हैं तो डेफिनेटली वो एनर्जी उनमें बहुत ज्यादा होती है। जब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और आपके सोलर पैनल्स या कोई बॉडी उसको फेस करेगी तो वो आहिस्ते से ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू करेगी। इस प्रेशर को कहते हैं सोलर प्रेशर। और ये सोलर प्रेशर जो है वो अगर लेट्स सपोज वो एक ऑर्बिट में मौजूद है तो वो उसको पुश करेगी कि वो इससे लोएस्ट ऑर्बिट की तरफ चला जाए, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो टुवर्ड्स द अर्थ होगा। इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द सन तो ये अर्थ की तरफ आपको पुश करेगा। सो ये जो सोलर प्रेशर है ये भी कंटिन्यूसली जो है वो एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ऑर्बिट जो है वो उसका कम होना शुरू हो जाता है किसी भी सैटेलाइट का। तो लेट्स सपोज अगर बहुत बड़े सोलर पैनल्स हैं तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इस प्रेशर को बियर कर रहे होते हैं, और इस प्रेशर की वजह से वो जो है वो अपनी जो एल्टीट्यूड है वो लूज करना शुरू कर देते हैं। जो सोलर बैंड्स एंड फ्लेयर्स हैं उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, और उनकी वजह से गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज भी जनरेट होती हैं। और एक और चीज, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ये बेल्ट भी जो है वो एक नॉर्मली है जो जमीन की सरफेस के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के से जो मैग्नेटिक लाइंस आपको नजर आती हैं, इसका फायदा ये होता है कि ये जो ये फ्लेयर होती हैं, जो एनर्जी की रेज होती हैं, ये तमाम का तमाम आपको सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर नजर आता है। तो इसकी वजह से आपको ये चमकती हुई डिफरेंट लाइट्स नजर आती हैं, जिसको अरोरा भी डिफाइन करते हैं। ये सोलर रेडिएशंस होती हैं जिसमें हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं। और एक और जो इसमें अनोमली कहलाती है, दैट इज दिस, ये जो आप इसका रेड पोर्शन देख रहे हैं जमीन के ऊपर, ये जो आपको नजर आ रहा है कि ये टुवर्ड्स ब्राजील अगर आप चेक करते हैं या अफ्रीका का कुछ साइड है वो टच करता है इसके साथ, इस जगह पे भी ये बहुत ज्यादा एक्ट करता है। तो जब इस साइड पे एक्ट करता है
तो नॉर्मली सैटेलाइट्स को इस पोर्शन से अवॉइड किया जाता है कि वो इस सैटेलाइट में से पास ना करें, क्योंकि जब भी वो इसमें से पास करेंगे तो डेफिनेटली ये जो हाई रेडिएशन विंड्स हैं या फ्लेयर्स हैं वो इसको इफेक्ट करती हैं। तो पहले तो ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर हैं ड्यू टू इस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये छोटी सी एनॉमली है, छोटी तो नहीं कह सकते क्योंकि एक फिनोमेना है, तो इसको अवॉइड किया जाता है। तो while designing the missions इस पोर्शन को भी खास तौर पे अवॉइड किया जाता है। Now the space environment hazards on a satellite. Now we will see the space environment hazard that have been most important for space systems in Earth orbit and discuss its implications on these satellites. So spacecraft charging ये होती है पार्टिकल्स की वजह से, सरफेस से पे भी होती है और इंटरनली भी होती है, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको ये डैमेज करती है। Then we have a technical terms related to OBC and that is single event effect, या ये होती हैं गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज की वजह से होती हैं, और ट्रैप्ड रेडिएशन और सोलर पार्टिकल्स की वजह से होती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो आपके मेमोरीज वगैरह होती हैं उनमें ये जाके चेंजेस करती हैं। तो जब आपको ये भी पता है कि जो मेमोरीज हैं वो पीएन जंक्शन से बनाई गई होती हैं, और पीएन जंक्शन जो है वो आपके डेफिनेटली एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एन में, और जो पी टाइप है उसमें होल पेयर ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली जब उसमें कोई इंटरफेरेंस होगी किसी रेडिएशन की वजह से, कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से, तो वो उसके अंदर उस लॉजिक को चेंज कर देंगी कि उसके ऊपर एक सुपर इम्पोज करेगी एक डिसीजन जो कि एक्चुअल डिसीजन नहीं है, या उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर बाय डिफॉल्ट लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 0 होना चाहिए, उसके ऊपर वो 1 रिकॉर्ड करवा देता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सिंगल इवेंट इफेक्ट्स आपके पास आते हैं। टोटल रेडिएशन रोजेस, ट्रैप्ड रेडिएशन एंड सोलर पार्टिकल। देन वी हैव सरफेस डिग्रेडेशन जिसमें आयन स्पटरिंग एक फिनोमेना है सैटेलाइट्स के अंदर, एंड ये O प्लस एरोजन, इसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि आपकी जो मेटेलिक सरफेसेस हैं उनकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे आपके पास एटॉमिक ऑक्सीजन मौजूद होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पार्टिकल जब इतनी हाई रेडिएशन में हाई एनर्जी की वजह से ब्रेकअप होता है तो दैट इज डिवाइडेड इनटू O प्लस एंड O नेगेटिव। उसकी वजह से जो आपके पास चार्जेस जनरेट होते हैं, जनरेट होने की वजह से जब ये किसी मेटल सरफेस पे जाते हैं तो मेटल सरफेस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडेशन की वजह से रस्टिंग होती है उनमें। फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो ओजोन है उसमें ये पार्टिकल ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, ये आयन ऑक्सीजन जो है वो आपके एब्जॉर्ब होती है, और जब वो एब्जॉर्ब होती है तो वो एक जो है वो आपके पास ओजोन जिसको O3 कहते हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन का जो एटम है उसको O2 कहते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है वो O2 की फॉर्म में होता है, लेकिन जो ओजोन है वो O3 की फॉर्म में होता है। तो O3 जो है वो इसको मतलब अगर आपके पास O2 अवेलेबल है तो उसमें O प्लस जो है वो जाके ओजोन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह डेब्रीज इम्पैक्ट या एस्ट्रॉइड्स भी हो सकते हैं, और जो प्रीवियसली लॉन्च व्हीकल्स जो गई हुई हैं या कोई मिशन गया हुआ है तो उसकी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भी स्पेस के अंदर अवेलेबल हैं, तो खुदा न खास्ता वो भी हिट करता है हमारे सैटेलाइट्स को, और वो दैट बिकम अ हैजर्ड फॉर दैट। एंड द लास्ट वन इज प्लाज्मा इंटरफेरेंस विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आप जब कम्युनिकेशन हो रही है उसकी तो वो जो उसकी वेव्स हैं उसमें जो थ्रू आपके पास माइक्रोवेव जो है वो सिग्नल कम्युनिकेट हो रहा होता है। अब एक सिग्नल वो है जो कि सैटेलाइट से इमर्ज हुआ है और वो टुवर्ड्स सरफेस या किसी और जगह पर ट्रैवल कर रहा है, तो जब उसके अंदर कोई प्लाज्मा इंटरफेरेंस होती है सन की या मुख्तलिफ फोटॉन्स की, उसकी वजह से वेव रिफ्रैक्शन होती है, और इसमें एक और सिंटिलेशन इफेक्ट भी आता है। सो दिस इज विद द कम्युनिकेशन के जब आपकी सैटेलाइट जो है कम्युनिकेट कर रही हो तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ दिस प्लाज्मा। मेजर स्पेस एनवायरनमेंट हैजर्ड्स ये अब एक सैटेलाइट के ऊपर जो है वो दिखाए गए हैं कि सबसे पहले इफ यू कैन सी हियर सरफेस डिग्रेडेशन फ्रॉम रेडिएशन, तो बिफोर एंड आफ्टर ये आप देख सकते हैं कि वो इसमें इरोजन कॉज करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिग्रेड ड्यू टू टोटल रेडिएशन डोजेस, उसके बाद सोलर एरे उसको डैमेज करती हैं। ये आपकी हाई रेडिएशन से भी हो सकती हैं, हाई एनर्जी की वजह से भी हो सकती हैं,
और इसके अलावा एक चीज और है जो ऊपर आपने स्टार्स स्टार ट्रैकर सीसीडीज। अब लेट्स सपोज आपका कोई कैमरा लगा हुआ है, वो एक स्टार ट्रैकर एक उसके अंदर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है जब प्रोटॉन्स ड्यूरिंग एक्सपोजर टू मल्टी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन्स जब उसके ऊपर बम्बार्ड होते हैं, तो बिफोर यू कैन सी दिस थिंग, एक आपके पास एक सर्कल नजर आ रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई है तो जो लेंस है उसकी हालत ऐसी होगी है। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं कि जो चीज आप लगा रहे हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं स्पेस एनवायरनमेंट की वजह से। एंड देन दैट इज द सिंगल इवेंट इफेक्ट्स इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस तरह मैंने आपसे एक एग्जांपल भी कही थी। 1101 लेट्स सपोज उसके अंदर डाटा के अंदर लिखा हुआ है, और वो क्या करता है कि जो 1 है शुरू का, उसको किसी वजह से जो है वो एक जीरो उसके ऊपर राइट कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल इवेंट इफेक्ट। वो उसके ऊपर जीरो लिखवा लेता है मेमोरी के ऊपर, बाकी का डाटा वही है, लेकिन क्योंकि ये ओवरराइट हो गया जीरो, जो कि चाहा नहीं जा रहा था लेकिन उसके ऊपर आ रहा है, अनडिजायर्ड थिंग है, ये थिंग भी पॉसिबल है मेमोरी के अंदर। स्पेस कंपोनेंट्स बिकम रेडियो एक्टिव, और इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स विद व्हीकल डिस्चार्ज ऑन सरफेस बिहाइंड थिन शील्डिंग और डीप इनसाइड। सो ये एक स्पेस क्राफ्ट के ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो चीज दिखाई गई है कि कौन कौन सी चीज उसकी किस तरीके से इफेक्ट कर सकती है। अभी इसके अंदर इसका डेब्री इफेक्ट नहीं बताया गया कि लेट्स सपोज कोई चीज हिट करती है तो हिट करने से क्या होगा। तो डेफिनेटली हिट की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि इतनी हाई स्पीड अगर कोई पार्टिकल इवन एक नट बोल्ट भी है, अगर वो हिट करेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आगे कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको शो करूंगा। ये एक आपके पास प्री फ्लाइट एक फ्रेम है और ये पोस्ट फ्लाइट फ्रेम है। अब आप इसमें देखेंगे प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपोजर फैसिलिटी, heavy ions in space experiment indicating atomic oxygen erosion and ultraviolet degradation। तो इसमें देखें ये जो इस तरीके से एक पैनल बनाया गया था, इस पैनल को इसने डैमेज कर दिया। सिमिलर चीज आपको ये हबल टेलीस्कोप के ऊपर नजर आ रही है कि हबल टेलीस्कोप के ऊपर 6.8 इयर्स की इरोजन, जब 6.8 इयर्स उसके कंप्लीट हुए हैं तो इसके ऊपर ये आपको एक जो एक्सपोजर हुआ है तो उसने क्रैक जो है वो इसके ऊपर, इसकी जो आउटर शील्डिंग है उस पर प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह एक स्वीट डिग्रेडेशन आपको नजर आ रही है जो कि इसके ऊपर एक स्पेशल ट्रीटमेंट थी एल्यूमिनाइज्ड टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक जो बहुत हाई जो है टेम्परेचर जो है बेयर कर सकता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर टेफ्लॉन की कोई कोटिंग थी जिस मल्टीपल लेयर्स से, और आफ्टर 19 इयर्स ऑफ एक्सपोजर यू कैन सी कि आपको बड़ा रफ किस्म का काफी जगहों पे से उखड़ा उखड़ा सा नजर आ रहा है, फट चुका है। और अब वो जो पार्ट्स हैं जिनको सेव किया जा रहा था अब वो जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं टुवर्ड्स सनलाइट, और डेफिनेटली जो इसकी हार्श जो एनवायरनमेंट है उसके लिए वो एक्सपोज्ड है। इसी तरीके से आप ये देखेंगे एक ये पार्ट है प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट इमेजेस ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मॉनिटर शोन with ultraviolet darkened insulation after 9 months of exposure on the Mir space station। तो जो रशिया का एक स्पेस स्टेशन था मीर, ये उसका एक पार्ट है जिसको दिखाया गया कि अल्ट्रावायलेट जो इसमें डार्कनिंग हो गई है, जो इसकी इंसुलेशन शेड ये हुई है। ये एक और पार्ट है, दो पार्ट्स हैं इसके कि जिसको डैमेज किया गया, डैमेज हुआ है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ फ्लेयर्स और स्पेस एनवायरनमेंट की वजह से। पोस्ट फ्लाइट फोटोग्राफ डिस्प्लेज द थिन films samples from the Materials International Space Station Experiment 4 with catastrophic failure of both coatings related to combined thermal cycling and atomic oxygen erosion। उसके बाद ये सोलर रेस के अंदर जो है वो अंडर कटिंग हो रही है और साथ साथ उसको डिग्रेड करता जा रहा है। तो अगर लेट्स सपोज यही जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो जनरेट कर रहे हैं सोलर पैनल्स, और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज शुरू कर देते हैं तो डैमेज होने की वजह से जो उसकी पावर रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं हो सकेगी, पूरी नहीं हो सकेगी। और एक और भी प्रॉब्लम है कि जितने बड़े आपके पास सोलर पैनल्स होते हैं उतना ही ज्यादा वो जो ड्रैग है वो उनके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो उसका ऑर्बिट है वो कम होना शुरू।
अब इनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? सर्विस आउटेज, कि इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं होती, मिशन डिग्रेडेशन, मिशन डिग्रेड हो जाता है, उसकी बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, मिशन फेल तक हो सकता है, इसी तरह डाटा लॉस हो सकता है, सेंसर डिग्रेडेशन हो सकती है जो कि इसके अंदर हमने लगाई हुई फॉर एक्यूरेसी मेजरमेंट, और इसी तरह फिर डिफरेंट सब सिस्टम जो है वो फेल हो सकते हैं। ये जब हम चीजें बनाना शुरू करते हैं तो इसकी वजह से लॉन्च डिलेज आते हैं, और इनको कैटर करने के लिए और कंटिन्यूसली जो रीडिजाइनिंग एंड टेस्टिंग प्रोसीजर चल रहा होता है कि तमाम के तमाम आइटम्स जो हैं वो क्वालिफाई करें स्पेस के लिए, और इसी तरह कोई एनॉमली एनालिसिस है उसकी भी जो है जिस वक्त जो स्पेस सिस्टम डिजाइन किया जाता है या सैटेलाइट जो मिशन डिजाइन किया जाता है तो इसमें तमाम चीजों को कैटर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये वो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें जो जिसको जो है वो कंसिडरेशन में रखा जाता है वाइल जब कोई हम मिशन डिजाइन करते हैं। इसी तरह ये आपको एक देयर आर बिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड ओनली थाउजेंड्स ऑफ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, spacecraft have a greater chance of getting hit by a very small object. For a spacecraft with a cross-sectional area of 50 to 200 meters square at an altitude of 300 kilometers, typically for a space shuttle mission, the chance of getting hit by an object larger than a baseball during 1 year in orbit is about 1 in 100,000 or less. So ये वो पॉसिबिलिटी है या एक प्रोबेबिलिटी निकाली गई है कि इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं कि उसमें से अगर आपका 300 किलोमीटर के ऊपर कोई स्पेस मिशन प्लान किया गया है और उसकी जो स्पेस जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज फ्रॉम 50 to 200 मीटर स्क्वायर, तो उसके हिट होने के कितने चांसेस हैं? The chance of getting hit by something only 1 millimeter or less in a diameter, however, is about 100 times more likely, or about 1 in 1,000 during 1 year in an orbit. So ये एक हैजर्ड है जो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करता है और जिसकी वजह से कुछ सैटेलाइट फेलियर्स हुए भी हैं। ये आपके सामने एक शो किया गया माइक्रोमीटरॉइड or orbital debris impact results in a 0.6 mm diameter crater and approximately 3 mm diameter all loss of the coating, कि उसमें से कोटिंग लूज कर दिएगा। इतना छोटा पार्टिकल जो कि जस्ट 0.6 mm का है, एक रेत के जर्रे के बराबर है, कि उसने हिट किया तो उसने 3 mm का जो है क्रेटर बना दिया। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा जस्ट लाइक अ बुलेट, तो अगर ये छोटा सा पार्टिकल भी हिट करता है तो ये काफी ज्यादा डैमेज करता है। ड्यूरिंग दिस लेक्चर मैंने कवर करने की कोशिश की है काफी एस्पेक्ट्स, और कोई मैथमेटिक्स शो मैंने नहीं की, सिर्फ आपको एक इंट्रोड्यूस किया एक टॉपिक। अब जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड मीडियम, वहाँ पे आप जाके मुख्तलिफ डिस्कवरी चैनल की और हिस्ट्री चैनल की जो वीडियोस हैं वो पड़ी हुई हैं, वो देख सकते हैं स्पेस रिलेटेड। मैंने थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है। सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। Thank you so much, Dr. Hayat. Participants, if you have any questions, तो आप you can raise your hand और हम आपका mic unmute कर देंगे, please. All the participants, अगर आपको डॉक्टर हयात से कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन विल गिव यू द माइक। So since there are no questions, I would like to ask everyone, all the participants and Dr. Hayat to please turn on their cameras for a group photo.
Everyone is requested to please turn on their camera. Assalamu alaikum. Welcome, Sam. Sir, I have a question about geostationary that it also moves around the earth. So why is it called stationary? ओके बेटा स्टेशनरी इसको इसलिए कहते हैं कि जमीन का जो रेफरेंस है उस रेफरेंस के हिसाब से वो मूव नहीं करता, बिकॉज जमीन का जो पॉइंट है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं वो भी इतनी ही उसी तरीके से उसी रेट के साथ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट के दोनों का लाइन ऑफ साइट जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है। जब लाइन ऑफ साइट मेंटेन रह रहा हो तो इसका मतलब है कि दे आर सिंक्रोनाइज्ड, वो एक ही तरीके से दोनों रोटेट कर रहे हैं। क्यों, जितनी देर में वो मूव करता है साथ में ही ये भी मूव कर जाता है, तो ऑल ऑफ द टाइम उनका जो लाइन ऑफ साइट है वो मेंटेन रहती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जियोस्टेशनरी। इट्स नॉट स्टेशनरी, इनफैक्ट वो स्टेशनरी होते नहीं है, वो घूम तो रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट वो मूव नहीं कर रहे होते, वो उसको सामने ही नजर, जब भी जमीन घूमती है तो उसको सामने सैटेलाइट भी उसी जगह पे नजर आ रही होती है। इसका मतलब है कि दे आर स्टेशनरी। ये सिर्फ जो टर्म ली गई है इसीलिए फिर एक और टर्म जो है जियोसिंक्रोनस का भी जो है वो जरा यूज किया जाता है, लेकिन स्टेशनरी इज जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो पॉइंट जो है और सैटेलाइट जो है वो तकरीबन एक ही लाइन ऑफ साइट पे हमेशा रहती हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये जियोस्टेशनरी। Okay, sir. Thank you so much. With reference to that point of Earth, ये याद रखिएगा, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसकी रेफरेंस से अगर देखा जाए तो वो जियोस्टेशनरी, अदरवाइज वो स्टेशनरी नहीं है। स्पीड्स वैसे भी मैंने आपको बता दी, दैट इज 11,000 किलोमीटर पर आवर। Do we have any other questions? Okay, so everyone is requested to please turn on their camera so that we can have a group photo and then we can leave. Thank you so much, Dr. Hayat, for your time. And I hope the lecture was wonderful and we really enjoyed it. And I hope everyone who was here, they really liked the lecture. And thank you so much to the participants for joining us. And since this was the last module of the day, we are hoping to see you with more enthusiasm tomorrow. Thank you very much. Have a wonderful rest of the day. Thank you very much.